Hello everyone, this is Hajra Zafar. I'm an occupational therapist and today I'm here at Autism Resource Group to tell you about autism and sensory processing in autism. I have done BSc Honours in Occupational Therapy from Children's Hospital, Lahore, and moreover, I have done practice in a private setup where for like 3 years, where I've been dealing with autism, ADHD, developmental delays, and different issues of kids related to the child. So today, now I have recently started a program or a project where I have been connecting to different therapists around the world, connecting people, encouraging people, and motivating people about different disorders and about different therapies and how can they be catered. Today my topic is autism and sensory processing disorder in autism. First of all, I'll begin with talking with autism. Most people ask me, what is autism? Is autism a disease? What is this? So I usually tell people that autism is basically a disorder that is a heterogeneous neurodevelopmental disorder, and it has been categorized by three things: lack of eye contact, poor social development, that is into the eye contact, communication, lack of communication, and communication skills. I basically call them communication skills. And thirdly, we can say it repetitive and repetitive movements. So first of all, I'll define lack of eye contact. You know, like the people in autism spectrum disorder feels difficulty in maintaining eye contact with the person talking. For example, if I'm talking to a person ahead to me, I can look right into the eyes and talk. But in autism spectrum disorder, people have difficulty in maintaining eye contact and if they could maintain for a longer period of time, and that could affect their social developmental skills as well. In lack of communication, if we go ahead to the second point, that is the lack of communication, people say, would they ain't be able to talk? No, that isn't the reason. They might need sometimes an additional help, additional need, or a use of therapy to help communicate, but they might feel some difficulty in communicating skills such as creative conversations or understanding the proper sense of humor. And then the third type is repetitive movements. That could be also part of sensory processing. They might show fidgeting, spinning, and any repetitive movement that they perform again and again could be considered into these repetitive movement. So this is what a definition of autism spectrum disorder. Now let's move to our topic, that is sensory processing in autism spectrum disorder. Before I talk about sensory processing in autism, I would first tell the audience that most of the people think that sensory processing disorder is basically a part of autism. So I want to explain people that sensory processing disorder is not a part. It can be a part, but it's not. It itself is another disorder which can be overlapped with autism disorder. So it is mostly overlap with autism spectrum disorder. So first of all, I've been having questions, people asking me, what is sensory integration and sensory processing? So first of all, let me define what is sensory integration. Sensory processing, if we could define it as a process in which a person receives the stimuli, sensory stimuli. So what is sensory stimuli? We've got 5 senses. We all have read from very early ages. That is, we call like auditory, visual, touch, olfactory, taste, all these 5 senses. And in being an autism, being an OT, we consider 7 senses. Rather than these 5 senses, we include also 3 more senses, that is called proprioception, vestibular, and interoceptive sense. The most commonly 2 that are talked about are proprioceptive and vestibular. Proprioceptive sense is the awareness of self. For example, if we ask a person awareness of ourself, awareness of our body, if we say that let's touch the right foot or let's move the right foot first.
So that is, we are having an awareness of our body or ourself. So this sense is called a proprioceptive sense. Or how much pressure should we be applying while writing with a pencil, so that so that the grip doesn't get affected or its lead doesn't get broken up. So that sense, that is also considered under proprioception. Next is vestibular. Vestibular is a sense where we move where a person gets to understand about itself in the space. For example, if you're moving out in a swing, so you're getting to know, are you moving forward or you are moving backward in the swing, or you are riding in the car, or you're getting to know that car is moving forward or reversing itself. So this is considered among the sense of vestibular. So let's if I talk about the eighth sense as well, which is interoceptive, is that is going to tell us, are we hungry, or we need to so this the sense of hungry, thirst, pain. So this sense that gives the awareness is called the proprioceptive sense. So now let's move to a topic that we were explaining, sensory integration, in which we receive the sensory stimuli, which include these 8 senses, take them, our brain take them, process them and produce an input, and that produce a response, output. So in sensory disintegration or sensory processing disorder, kids face some difficulty in taking the input, processing it properly and resulting a proper output. So sensory integration is based on 2 more commonly things. One is neuron threshold level and second is behavior outcomes. Neuron can be considered, if I explain it in easy words, it can be a cell in your brain that excite the moment you receive a sensory stimuli. The neuron excites and produces a response, reaches its level that it produces a response which results in generation of an output. If I explain it in Urdu, in an easy language for all of us, ये ऐसे है कि आपको एक सेंसरी स्टिमुलाई मिला. फॉर एग्जांपल आपको किसी ने आवाज़ दी, ऑडिटरी सेंस आई, आपने उसको आवाज़ को सुना, आपके ईयर से अंदर गई, आपके ब्रेन तक गई, उसने न्यूरॉन को एक्साइट किया, वो प्रोसेस हुआ, वो अपने लेवल को पहुंचा, उस लेवल को थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, जहाँ पे वो एक्साइट होता है और वो रिस्पॉन्स देता है और उसके एंड में आपको एक आउटकम मिलता है, बिहेवियर मिलता है, जिसके रिस्पॉन्स में हम उस बंदे को आंसर कर सकते हैं या उसकी तरफ देख सकते हैं. दिस मीन्स कि हमने उस सेंसरी स्टिमुलाई को रिसीव किया, प्रोसेस किया और उसका रिस्पॉन्स दिया. इन किड्स फेसिंग सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, उसमें 2 तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं. या तो उनका थ्रेशोल्ड लेवल लो होता है या बहुत हाई होता है. लो होने का मतलब ये है, अगर तो हम उसको बात करते हैं कि थ्रेशोल्ड लेवल लो है. फॉर एग्जांपल, इसमें सेंसरी स्टिमुलाई, थोड़ा सा उस स्टिमुलाई गया और फ़ौरन से न्यूरॉन एक्साइट हुआ और उसने बिहेवियर आउटकम दे दिया. अगर हाई है तो इसका मतलब है कि उसको नंबर ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई एक एज अप्रोप्रिएट सेंसरी स्टिमुलाई से या नॉर्मल सेंसरी स्टिमुलाई से ज़्यादा चाहिए उसको प्रोसेस करने में, थ्रेशोल्ड को या उस थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचने के लिए, एक्साइट होने के लिए और रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए. अब हमारे पास यानी कि 2 तरह से आ गए, या तो हाई थ्रेशोल्ड होगा या लो थ्रेशोल्ड होगा. इसके रिस्पॉन्स में हमारे पास 4 तरह के बिहेवियर्स आते हैं, जिसमें पुअर रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें सेंसरी सेंसिटिविटी होती है, जिसमें सेंसरी सेंसिटिविटी हो गई, और उसके अलावा जो है आप कह सकते हैं सेंसरी अवॉइडर हो गया और सेंसरी सीकर हो गया. पुअर रजिस्ट्रेशन का मतलब अब आपको समझ आ रही है. पुअर रजिस्ट्रेशन हमें नाम से समझ आ रहा है. इसका मतलब है कि बच्चा इफेक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, यानी कि पुअर रजिस्ट्रेशन है, डल है, लो है. इसका मतलब क्या हुआ कि उसका हाई थ्रेशोल्ड लेवल है, यानी कि उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई चाहिए उसके न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए और उसका एक आउटकम या उसका रिस्पॉन्स, बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए. और इसी तरह हमें बच्चा, क्योंकि उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए होता है, उसको ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलाई चाहिए होता है एक रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, इस वजह से हमें पुअर रजिस्ट्रेशन में, जिस बच्चे को पुअर रजिस्ट्रेशन होती है वो हमें डल लगता है या स्लो लगता है या लेज़ी लगता है, उसकी मूवमेंट्स अनकोऑर्डिनेटेड लगती हैं. इसी तरह अगर हम चलते हैं सेंसरी सीकर बच्चे की तरफ,
तो सेंसरी सीकर में क्या होता है कि उसमें भी थ्रेशोल्ड लेवल हाई चाहिए होता है, उसमें उसका सेंसरी स्टिमुलाई से उसको रिस्पॉन्स तो फ्रीक्वेंटली उसको सेंसरी स्टिमुलाई तो मिल रहा होता है, लेकिन उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई चाहिए होता है उसका थ्रेशोल्ड लेवल इंक्रीज लेवल तक पहुंचने के लिए, बिकॉज वो अब उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उस स्टिमुलाई को उसको अंडरस्टैंड करने के उसमें होता है। इस वजह से अगर आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं बार बार एक चीज़ को, एक टेक्सचर को बार बार टच करते हैं, दे आर सीकिंग फॉर इट, दे नीड मोर सेंसरी स्टिमुलाई, उसको एक स्टिमुलाई ज़्यादा चाहिए एक रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए। इसी तरह अगर हम चलते हैं सेंसरी अवॉइडर बच्चे के लिए, तो उसका थ्रेशोल्ड लेवल हाई होगा। दिस मीन्स कि थोड़ा सा सेंसरी स्टिमुलाई गया, न्यूरॉन फ़ौरन से एक्साइट हो गया और उसने बिहेवियर आउटकम दे दिया, या और बच्चे को थोड़े से स्टिमुलाई से जल्दी से रिस्पॉन्स आ गया। दिस मीन्स कि वो नए इसी तरह वो सेंसरी अवॉइडर है, वो नए चेंज को या नई चीज़ों के लिए वो आपको फ्रस्ट्रेटेड नज़र आएगा, वो टेंट्रम शो करेगा, वो चेंज की तरफ रेजिस्टिव होगा, इस वजह से क्योंकि वो उसका न्यूरॉन लेवल जो है वो लो है, थ्रेशोल्ड लेवल लो है। इसी तरह अगर हम चलते हैं व्हाट वी आर लेफ्ट विद सेंसरी सेंसिटिव, सो उसका थ्रेशोल्ड लेवल हाई है, सॉरी लो है। सो उसको थोड़ा सा सेंसरी स्टिमुलाई मिला, उसने रिस्पॉन्स लिया और उसका फ़ौरन से बिहेवियर आउटकम आया कि वो उस चीज़ को उस सेंसरी स्टिमुलाई को लेने में अवॉइडेंस उसको सेंसिटिव होता है, उसको इतनी इजीली उस चीज़ को, यानी कि उसका लो थ्रेशोल्ड लेवल है। सो दिस इज़ व्हाट अ सेंसरी इंटीग्रेशन। सो व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड इज़ कि सेंसरी प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है और सेंसरी डिसइंटीग्रेशन क्या रिजल्ट करती है। आगे अगर हम सेंसरी प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो डिसऑर्डर जिसकी 3 मेन टाइप्स में आता है, वो 3 तरह का होता है, सेंसरी बेस्ड मोटर, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन और सेंसरी मॉड्यूलेशन के अंदर आ जाते हैं। सेंसरी मॉड्यूलेशन में वही सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिव हो सकता है, सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिव हो सकता है और सेंसरी क्रेविंग हो सकती हैं। सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर में पोस्टरल डिसऑर्डर हो सकता है या डिस्प्रेक्सिया रिजल्ट कर सकता है। इसी तरह सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन में बच्चे को ऑडिटरी जो हमारी 7 सेंसेस हैं उसकी डिस्क्रिमिनेशन में अफेक्ट कर सकता है। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज सेंसरी processing disorder, and I explain how sensory processing affects a child in autism. So let's talk about कि जनरली हमारे पास क्लिनिक में ऑटिज़म के अंदर जब सेंसरी प्रोसेसिंग में होता है तो हमारे पास पेरेंट्स क्या इश्यूज़ लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल दिल से कि इसके लैक ऑफ आई कांटेक्ट है, या ये बार बार एक टास्क से दूसरी टास्क की तरफ जाता है, या इसके टेंशन कंसंट्रेशन का लेवल वो नहीं है, या ही इज स्पिनिंग ऑल द टाइम, या he shows hand flapping or he puts hands on his ear. So all these things are resulting because of sensory processing issues that are affecting a child. ये हो सकता है कि बच्चे को या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो रहा है, या वो ओवरलोडेड हो रहा है, या he is not getting the appropriate stimuli that he is needed to is needed कि जो उसको response create करे. We just got a question. I know few children where their brain is not aware of both legs or arms. They consider their legs as one leg and arms as one arm only. How do you deal with this issue? How do you wake brain to accept the child has 2 legs, not one? So basically if you move on towards a proprioceptive that is talking about, जैसे कि मैंने आपको बताया, it's all about how do we respond to our body. फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोप्रियोसेप्शन इज़ ऑल अबाउट आवर बॉडी अवेयरनेस, जिसमें हम बात करते हैं दिस इज़ हमें अपनी बॉडी की कितनी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए, या कितना उसके साथ हमें अपनी बॉडी अवेयरनेस होती है राइट लेफ्ट साइड, और हाउ टू मूव आवर आर्म, हाउ टू मूव आवर लेग. सो इफ़ योर किड इज़ फेसिंग सम डिफ़िकल्टीज और इशूज़, तो व्हाट यू हैव टू डू विद दैट इज़ कि आपको उसको डीप प्रेशर्स या डीप हग्स देने चाहिए. यू हैव टू गिव हिम अ हग, और आप उसको मसाजेस दे सकते हैं. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसके साथ हैवी वेट लिफ्टिंग करवाएं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ ही इज़ गोइंग टू लिफ्ट अ हैवी वेट
अलॉन्ग विद इट। फॉर एग्जांपल आप पेप्सी कोका कोला की पेट बॉटल्स होती हैं, उन हैवी बॉटल्स को उसके साथ वेट लिफ्ट कराएं। अगर उसको लेग्स को डिस्टिंग्विश करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप वेटेड जो है उसके साथ जो है वो बॉल ले सकते हैं, उस बॉल को उससे कहें किक करें। फर्स्ट आप उसको शो कराएं, उसके साथ स्टैंड करें और उससे कहें कि लेट्स किक विद द राइट लेग, और अपनी राइट लेग को मूव करें और उसको भी कहें कि वो राइट लेग को मूव करें। फिर उसी बॉल को आप उसके लेफ्ट साइड से किक करवाएं। इसके अलावा आप उसके साथ जो है वेटेड कफ्स ले सकते हैं और उस वेटेड कफ्स को टाई कर सकते हैं उसकी राइट लेग पे फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और उससे उसको कह सकते हैं कि किक अ बॉल विद योर राइट लेग एंड देन आप उसका वेट जो है लेफ्ट लेग पे लेकर आएँ और उससे लेफ्ट लेग से किक कराएं। इस तरह उसको डिस्टिंग्विश करने में ईजी होगा कि वो ना राइट लेग को किक करा है और अब वो लेफ्ट लेग को किक करें, क्योंकि आप साथ साथ उसको वर्बल क्यूज़ दे रहे हैं, वर्बल प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। सो विद वर्बल प्रॉम्प्ट्स, विद द अवेयरनेस ऑफ, आप उसके अलावा उसके साथ डीप प्रेशर्स के साथ और उसको वेटेड एक्टिविटीज़ करवा के, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें उसकी लेग्स के ऊपर वेट आए, और डिफरेंट आई ट्राई कि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे वेट करें। व्हील बैरो वॉक करवाएं उसके साथ, जिम बॉल को प्रोन लाइन करवा के उसके साथ एक्टिविटीज़ कराएं, और ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसमें लेग्स के ऊपर वेट ज़्यादा हो, और बॉल किकिंग कराएं विद वेटेड कफ्स करवाएं, सो दैट उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी साइड ऑफ द बॉडी की अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू करे, तो इट विल ऑल हेल्प। ओके, वी आर गेटिंग क्वेश्चंस ओवर हेयर। Okay, I have a question. If a child is touching his ear, then what does it mean? There is some problem in his ear or some sensory issue. ओके, बेसिकली ऑब्वियसली एक तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस देखना पड़ेगा, डायग्नोसिस क्या है, और उसके अलावा पर्टिकुलरली बच्चे को देखना पड़ेगा कि वाकई इज़ इट रिगार्डिंग सेंसरी इश्यूज़ की वजह से हो रहा है या बच्चे के ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गई है या कोई और रीज़न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए बच्चा जो है वो होना ज़रूरी है ताकि उसको असेस किया जाए और रूल आउट किया जाए सेंसरी इशू है या इन्फेक्शन है। सो दिस विल हेल्प बेटर। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को इक्विलिब्रियम में इशू हो रहा है या वो अपनी बॉडी बैलेंसिंग में इशू कर रहा है, बिकॉज द इक्विलिब्रियम एंड ऑडिटरी आर इंटर रिलेटेड। सो इसके लिए बच्चे को असेस करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये इन्फेक्शन की तरफ जाता है या सेंसरी इशू की तरफ जा रहा है। अगर तो बच्चा टच कर रहा है अपने बार बार ईयर, अगर आपको लगता है कि वो अपने ईयर को कवर करता है ड्यूरिंग द साउंड, उसको साउंड आती है हाई, आपको उस पिच को, प्रॉपर पिच को देखना पड़ेगा, किस पिच के ऊपर जो है वो साउंड को के ऊपर वो कर रहा है। आपने स्लो पिच से आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी हाई पिच इंक्रीज़ करते जाएं, बच्चे को उसको हैबिचुएट करते जाएं, उसकी डिसेंसिटाइजेशन करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर पिच पे वो एकदम अपने ईयर को कवर करता है, तो आप उसको पहले स्लो वॉल्यूम पे या उससे लो पिच पे उसके साथ स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की पिच और उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते जाएँ ताकि वो उसको हैबिचुएट होता जाए और डिसेंसिटाइज होता जाए। ओनली इफ़ अगर आपको लगता है कि ऑडिटरी सेंसिटिविटी है, अगर इसको फर्स्ट फिर भी रूल आउट करेंगे कि कहीं ईयर इन्फेक्शन तो नहीं है, वाकई अंडरलाइंग सेंसरी इशू रिलेट करता है, तो फिर हम ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असेस दैट किड। Okay, we have got another question. Why does a child changes task frequently and doesn't stick to one task for long? What to do for that? अगर तो एक बच्चा अपने एक टास्क पे बहुत देर तक नहीं रह रहा, दिस मीन्स कि उसकी अटेंशन और कंसंट्रेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन लेवल नहीं होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी, अगर मैं इसको एक बहुत ईजी एग्जांपल में आपको सिंप्लीफाई करूं, अगर आप एक मूवी को देख रहे हैं और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आप क्या करेंगी? आप थोड़ी देर उसको देखेंगे पर आप गौर से नहीं सुनेंगे और आप इधर उधर अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को देखना शुरू कर देंगे, बिकॉज वी आर नॉट मोर इंटरेस्टेबल इन इट, और या हम किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाएंगे। दिस मीन्स कि बच्चे की अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं है for that task to be applied for. Still we'll see कि हम पहले उसकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिस चीज़ में बच्चे को जिस टास्क में इंटरेस्ट है हम उससे स्टार्ट करेंगे या उसके एज अप्रोप्रिएट टास्क से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ उसके इंटरेस्ट डेवलप करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट हिज इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, उसमें हम उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसके एज अप्रोप्रिएट टास्क हैं उसको इंडल्ज करते जाएंगे। इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे का कितना टेंशन लेवल है। उसके लिए आपको बच्चे की डिपेंड करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। फॉर एग्जांपल अगर उसका टेंशन कंसंट्रेशन लेवल लो है तो पहले आप उसके साथ फिजिकल स्किल्स के साथ स्टार्ट करेंगे, फिजिकल स्किल्स के साथ उसकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, उसका मेंटली उसको रिलैक्स करेंगे
और उसको टास्क पे लेकर आएंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि फॉर एग्जांपल अगर वो 2 मिनट्स के लिए एक टास्क को अटेंशन देता है तो आपने खुद 2 मिनट्स के बाद उसको मूवमेंट ब्रेक देनी है, देन अगेन आपने उसको लेके जाना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है, 2 मिनट्स 30 सेकेंड, देन 3 मिनट्स 5 मिनट्स, एंड आहिस्ता आहिस्ता आप करते करते टाइम ज़्यादा लेके जाते हैं, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, एंड इट मोस्ट प्रोबेबली गोज़ टू हाफ एन आवर 45 मिनट्स। हम एक बच्चे के साथ इन अ सेशन जो है इस तरह उसके साथ अटेंशन कंसंट्रेशन उसका टास्क इंक्रीज करते जाते हैं। बट स्टार्टिंग आप उसकी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ करेंगे, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। एक आपने इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रखी, फिर आपने उसकी एज अप्रोप्रिएट अपनी मर्जी की चीज़ रखी, सो दैट आप उसका स्टेमिना बिल्ड करते जाएं। इस तरह आप एक अपने बच्चे का स्टेमिना बिल्ड कर सकते हैं। सो दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द फिजिकल एक्टिविटी, देन यू विल गो फॉर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड, इंटरेस्टिंग और इजी टास्क फॉलोड बाय अ डिफिकल्ट टास्क, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी टेंशन बढ़ती जाएगी, द मोमेंट आपको पता है कितनी लेवल ऑफ अटेंशन है, उसको मूवमेंट ब्रेक दें एंड देन ब्रिंग हिम बैक टू दैट टास्क, और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। Okay, so next I have got a question over here. Please tell why it is important to do sensory plays like shaving foam, etc. How will they help the kid? So first of all, shaving foam, messy play are very good for the kids. You know, agar I start with plays are the very important skills. Play के ऊपर मैं जितना ज़्यादा स्ट्रेस दूंगी वो उतना कम है। प्ले बच्चे के लिए बहुत अहम है। प्ले बच्चे का काम है, जैसे आपका काम है, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, इसी तरह अगर आप छोटे बच्चे का पैटर्न देखें तो छोटे बच्चे का काम खेलना है। बच्चा जितना खेलने से लर्न करता है और किसी चीज़ से नहीं लर्न करता है। और बात रही जैसे आपने पूछा कि मेसी प्ले शेविंग फोम से कैसे है, तो इफ़ यू गेट टू नो, जैसे जैसे आप बच्चे के साथ इंडल्ज होते हैं यू विल गेट टू नो। छोटे बच्चे का अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें तो हम उसका एक IQ लेवल ऐसे मेजर नहीं कर रहे होते, या उससे हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर सकते, वो इतना छोटा होता है। बट वी से कि एक छोटे बच्चे का IQ लेवल, या व्हाट वी से कि उसको मेंटली या उसको कॉग्निटिवली शार्प करने के लिए, जिसको हम कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि मेंटल स्किल्स को शार्प करने के लिए हम टच का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा टच से अपने कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करता है। जैसे एक छोटे बच्चे के अगर हाथ में आप रैटल देते हैं, उस रैटल से लाइट्स जलती हैं या उससे आवाज़ आती है, या उसका फोर्स उसको अंदाज़ा होता है कि मुझे इतना वेट लगाना पड़ेगा इस रैटल को उठाने के लिए, या उसी टच से वो अंदाज़ा लगाता है उसके साइज़ के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में, उसके वेट के बारे में। दिस मीन्स कि टेक्टाइल टच का जो स्टिमुलस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स के लिए। इसी तरह अगर आप शेविंग फोम में चले जाएं तो शेविंग फोम इज़ अ मेसी प्ले, जिसमें मोर प्रॉबेबली हमारा टच का स्टिमुलाई यूज़ हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है। सो टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बच्चों की लेयर एक्टिविटी ही है, उससे वो लर्न भी कर रहा है, उससे उसके कॉग्निटिव स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। स्टिल इट डिपेंड्स कि आप शेविंग फोम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप उसको मल्टी सेंसरी अप्रोच में यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप उससे बच्चे को ए लिखना सिखा सकते हैं। आप नोट करें कि अगर आप शेविंग फोम पे मेसी प्ले से बच्चे को ए लिखना सिखाएं और एक पेपर पेंसिल पे उसको ए लिखना सिखाएं, तो वो शेविंग फोम पे या मेसी प्ले से ए सीखना ज़्यादा अच्छा सीखेगा एज़ कम्पेयर टू जैसे ही आप उसको पेपर पेंसिल दे दें। सो दीज शेविंग फोम, इनके आप क्या टेक्निक्स अंदर यूज़ करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप उस बच्चे को क्या सिखाते हैं। लेकिन स्टिल आई विल से मेसी प्ले, touch stimulus and all this is very good for kids. It's a part of their play skill. बच्चा जितना उससे लर्न करेगा इट्स मोर बेटर फॉर दैट। सो आपकी स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है और आप शेविंग फोम से बहुत कुछ बच्चे को सिखा सकते हैं। आई एम गेटिंग थैंक यू मैसेजेस, वेलकम एवरीबडी। आई एम ग्लैड दैट इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प अवेयर पीपल अबाउट दिस। Amara, maybe he's doing okay, so somebody is telling you कि he's doing activities of less interest, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उसकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ को डालें और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ को अंदर डाल दें। Okay, next we have a question. Many parents complain about hand flapping, biting and pitching. How can they tackle it? Okay, there are three things. Now बहुत सारे parents complain करते हैं. For example, for that मैं आपको फिर कहूँगी कि hand flapping, biting and pinching. These are three things. Dealing with it, first of all, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप एक occupational therapist के साथ साथ एक behavior therapist को भी incorporate करते हैं। बिहेवियर थेरेपिस्ट को क्यों इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसका लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि सेंसरी प्रोसेसिंग में हमारे पास दो इंटीग्रेशन, दो चीज़ों का आउटकम है, दो चीज़ें इंक्लूड करती हैं।
एक न्यूरॉन थ्रेशोल्ड लेवल होता है, एक बिहेवियर आउटकम होता है। जब बच्चा ओवरलोड हो रहा है या सेंसरी सीक कर रहा है उसको, तो वो हैंड फ्लैप कर रहा है, उसको अपने आप को रेगुलेट करने के लिए या काम डाउन करने के लिए कर रहा है, लेकिन वो उस वक्त तो अपने आप को काम डाउन भी कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बिहेवियरल अडेप्टेशन भी वो बनती जा रही है। इवन इफ ओटी वर्क्स ऑन हिज और हर सेंसरी इश्यूज, स्टिल उसकी बिहेवियर अडेप्टेशन, बिहेवियर हैबिचुएशन के लिए हमें बिहेवियर थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत होगी, जो विद सोशल स्टोरीज उसको गाइड कर सकता है, या जो उनकी बिहेवियर स्ट्रैटेजीज हैं वो उसको फ्लैपिंग, बाइटिंग एंड पिंचिंग को हेल्प कर सकता है। नाउ मूव टुवर्ड्स व्हाट एन ओटी कैन डू इज, फ्लैपिंग में आप वही कर सकते हैं, डीप प्रेशर्स दे सकते हैं, वेटेड कफ्स के थ्रू ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें आप उनके हैंड्स को डीप प्रेशर्स दें, हैंड एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराएं, हैंड पेंटिंग कराएं, प्लेडो से कराएं। थर्ड ग्रेड थेरेपिटी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट हाई रेजिस्टिव थेरेपिटीज़ को यूज़ करें, उसको पुल करें, उसको स्ट्रेच करें, उसके साथ स्पाइक्स बनाएं। डिफरेंट हैंड एक्टिविटीज़ जिसमें हैंड प्रेशर इन्वॉल्व होता है, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें। बच्चे के साथ स्क्रिबलिंग एक्टिविटी करें, स्क्रिबल पे उसके हाथ के ऊपर हाथ रखें, उसको प्रेशर दे दें, या उसकी हैंड पेंटिंग करें, प्लेडो, पट्टी, एनीथिंग जिससे बच्चे की प्रेशर एक्टिविटीज़, जिससे बच्चे के हैंड्स पे प्रेशर पड़ेगा, वो एक्टिविटीज़ करें, तो मोस्ट प्रॉबली हम फ्लैपिंग में आप बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ देखेंगे। बाइटिंग के लिए भी दैट इज़ व्हाट, कि आप डीप प्रेशर्स और पिंचिंग, ये फ्लैपिंग और पिंचिंग दोनों के लिए, पिंचिंग के लिए आप इधर जो है डीप प्रेशर्स दे सकते हैं। इसके अलावा फॉर बाइटिंग आप डीप प्रेशर्स जो हैं, गम मसाजेस दे सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल गम मसाजेस दे सकते हैं, ठीक है। गम मसाज इतना होना चाहिए सॉरी, कि बच्चे को प्रेशर फील हो, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसको दर्द हो जाए। प्रेशर इतना, आपने एज अप्रोप्रिएटली बच्चे के हिसाब से इंटरनल एक्सटर्नल गम मसाज दें, उसके चीक्स के साथ खेलें और सिली फेसेस बनाएं और उसको क्रंची फूड दें। सो ऑल दिस विल हेल्प रिड्यूस इन बाइटिंग। Even on YouTube he doesn't stick to one rhyme for long and changes it again and again, so that is what I said कि आप उसके साथ उसका टेंशन कंसंट्रेशन लेवल, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो उसके थ्रू आप उसका टेंशन कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इट्स गुड, ट्राई करें और ज़रूर बताइएगा विल इट वर्क इट आउट और नॉट, वरना हम स्ट्रेटजी को और चेंज कर सकते हैं और शेप कर सकते हैं। थैंक यू असद मिर्ज़ा, थैंक यू रिया आमिर, ग्रेट जॉब, थैंक यू। देन वी हैव thank you so much for such a detailed answer, welcome. And if you give shaving or sand to play, he put all thing in mouth, why? Even if he play with the water, he lick water through tongue to feel, why? Okay, let me understand your question again. If I give shaving or sand to play, he put it all the things in mouth. Okay, so he is doing a mouth thing. So bit if I explain mouthing अगर देखा जाए तो basically if I say in before I explain mouthing, मैं इस चीज़ को क्लियर करती जाऊँ कि जो ऑटिज़म में बिहेवियर्स आते हैं या हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, अगर आप उसको देखें तो वो सब चीज़ें वो होती हैं जो कहीं ना कहीं एक टिपिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रही होती हैं। एक छोटा बच्चा करता है, जैसे जैसे वो अपनी सेंसरी डेवलपमेंट करता जाता है, वो आगे आगे उन चीज़ों को छोड़ता जाता है और मूव ऑन करता जाता है। सो ऑटिज़म में बच्चे जब तक अपनी सेंसरी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो हमें उस चीज़ पर स्टिक ऑन करते हुए नज़र आते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। माउथिंग में ये होता है, जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे को देखें तो वो शुरू में रैटल्स को, चीज़ों को या अपनी फिंगर्स को अपने मुंह में डाल रहा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, चलना शुरू होता है या क्रॉल करना शुरू होता है, आप देखते हैं कि वो ज़मीन से चीज़ों को उठाना मुंह में शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो 2 ईयर को क्रॉस करता है एंड टूवर्ड्स 3 पहुंच जाता है, तो आप देखते हैं कि वही बच्चा सोशलाइज करना शुरू हो जाता है, अपने पीयर्स में अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाता है। सो माउथिंग इज़ अ पार्ट के एक टिपिकल डेवलपमेंट में चल रहा होता है। छोटा बच्चा अपने टीथ को ग्राइंड कर रहा होता है, जब दांत निकल रहे होते हैं उसमें हम बच्चों को माउथिंग पीस देते हैं, टीथर देते हैं। इसी तरह इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी जो माउथिंग है, जो इसमें हर चीज़ मुंह में डाले, दिस मीन्स के वो सीख कर रहा है। उसमें भी यही है, आप कर सकते हैं कि आप उसको डीप प्रेशर्स दें, गम मसाजेस दें, जैसे मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ओवर देयर, इंटरनल आप ग्लव पहन के गम्स के ऊपर, एंड देन यू मूव टूवर्ड्स दिस साइड एंड इस तरह फिंगर से आपने गम्स पे मसाज देने। इसके अलावा आप जी वाइप ब्रश ले सकते हैं। जी वाइप जो है पाकिस्तान में मिलना मुश्किल है, अमेज़ॉन से आपको ऑर्डर करना पड़ता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ओरल बी का वाइब्रेटिंग ब्रश ले सकते हैं और उसको 1 इन अ डे बच्चे को दें।
इसके अलावा बच्चे के साथ क्रंची फूड इंट्रोड्यूस कराएं। जितना ज़्यादा क्रंची फूड लगाएगा, जितना उसको प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा अपने गम्स पर, उतना ज़्यादा वो अपने आप को बेटर सेल्फ रेगुलेट करना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो माउथिंग करना छोड़ देगा एंड देन it will be okay. So I'll say vibrating brush, gum massages, playing with your oral massage, playing with your oral motor areas, playing with the cheeks, or making silly faces, gum massages. उसके अलावा आप क्रंची फूड इंट्रोड्यूस कराएं. सो ऑल दिस विल हेल्प टू सेल्फ रेगुलेट द चाइल्ड एंड अल्टीमेटली लीविंग दैट माउथिंग थिंग. Okay. So next we'll move to the next question. Thank you, Mevish Atar. Welcome. Memuna Ali, my son 4.5 here, he wear dress shirt of his father. He loved to do it. Okay, so what do you want to tell you about this? Any suggestion about it? I don't get your point. Can you rephrase it? That he wears a dress shirt. So what do you find it difficult in it? I just want to know कि आप पूछना क्या चाह रही हैं. Then I'll definitely going to answer it. Okay, my son is 6 years old and he spits on people. Please help. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए भी ये है कि हमें बच्चे का देखना पड़ेगा कि डायग्नोसिस क्या है और क्या इसके अंडरलाइंग कॉज क्या है. इज़ इट अ बिहेवियर इशू या इसको सेंसरी इशू के अंदर हम इसको रिलेट कर सकते हैं. तो इसके लिए बच्चे को असेस करना जो है वो ज़रूरी होगा. एंड उसके लिए आप ये कर सकती हैं कि अगर तो आपको लगता है स्पिट करता है तो जैसे मैंने आपको ओरल अभी बताई कि आप उसके साथ गम मसाजेस कर सकते हैं, क्रंची फूड एंड ऑल दैट. लेकिन और उसके लिए आप उसको प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं. दैट्स नॉट, नो नहीं कहते बच्चों को, बल्कि उसकी जगह दैट इज़ द बेटर वे कि आप कह दें दैट्स नॉट द राइट वे, कि ये तरीका ठीक नहीं है. सो इफ़ यू डू इट, लेकिन उससे पहले असेस करना पड़ेगा कि क्या ये बिहेवियर इशू तो नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इसको असेस करके फिर आई कैन गाइड इट मोर के व्हाट इज़ द अंडरलाइंग कॉज. फिर उसके हिसाब से इस चीज़ का ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस हो सकता है. अच्छा जी, हाउ डू यू एक्सप्लेन सेंसरी इशू? माई सन टचेज हिज फेस हार्ड टू माइन, फेस हार्ड टू माइन. ओके, दिस मीन्स कि आपका बच्चा बार बार अपने फेस को टच कर रहा है या आपके फेस को टच कर रहा है. तो दिस मीन्स कि वो टेक्टाइल एक्सपोजर जो है वो बार बार लेना पसंद कर रहा है. सो आप उसके साथ डिफरेंट टेक्टाइल एक्सपोजर कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले तो आप डीप प्रेशर्स दें एट हैंड्स, और उसके अलावा वही जो मैंने आपसे कहा कि हैंड को लेके फिंगर हैंड पेंटिंग कराएं, उसके ऊपर प्रेशर डालें, प्लेडो लें, थेरापटी लें, एवरीथिंग दैट पुट्स द प्रेशर ऑन हिज हैंड या उसकी बॉडी के साथ. इस तरह डीप प्रेशर, पूरी फुल बॉडी डीप प्रेशर हग्स करें और उसके अलावा हैंड्स के ऊपर प्रेशर दें और हैंड के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे वो प्रेशर सीक कर सके. सो इट विल ऑल हेल्प. Why my son respond on some sound, all hearing test clear? What is APD? I told you about SPD. SPD is sensory processing disorder, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बच्चे को सेंसरी इनपुट लेने में, उसको प्रोसेस करने में और उसको आउटपुट देने में डिफ़िकल्टी होती है, बिहेवियर आउटकम देने में. जैसे आपने कहा कि वो सारे साउंड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता. दिस मीन्स कि आपका कि डेफिनेटली जो चीज़ उसके इंटरेस्ट की होगी उसमें करना पसंद करता होगा. सो यू हैव टू उसकी अटेंशन कंसंट्रेशन, उसके साथ आप प्ले टाइम इंक्रीज़ करें. इस तरह की एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जैसे कि अगर मैं उसका फेवरेट चिप्स का रैपर खोलूं तो ही विल कम बैक, वो फ़ौरन से भागा भागा मेरे पास आएगा. लेकिन अगर मैं उसको आवाज़ दूं तो वो उसको नहीं सुनेगा, बिकॉज उस रैपर को खुलने में उसको इंटरेस्ट है लेकिन आपकी आवाज़ देने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, कि आप देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग फॉर हिम. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप बच्चे के साथ प्ले टाइम करें, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, उसके प्ले स्किल्स को इन्हेंस करें, उसके साथ प्ले टाइम इंक्रीज़ करें, फिजिकल स्किल्स इंक्रीज़ करें उसके साथ, और उसकी अटेंशन कंसंट्रेशन प्रॉपर आप उसके साथ जो है प्ले टेबल टॉप एक्टिविटीज़ कराएं जिसमें उसकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हों, और उसके साथ उसको साउंड इंटोनेशन के साथ एक्टिविटीज़ कराएं. फॉर एग्जांपल वी कैन से लेट्स मेक अ टर्टल, और उसको थोड़ा राइमिंग साउंड में करें सो दैट उसको इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो कि जो अम्मा कह रही हैं दिस इज़ समथिंग टू बी इंटरेस्टिंग, और उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होना शुरू हो तो वो आपकी साउंड्स की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा. Why my child only respond on some noises, how to treat it? As I've told you, he even take toy and put it near ear to enjoy sound, all hearing test clear. अच्छा जी,
वही मैंने बात बताई कि जो चीज़ उसको इंटरेस्ट का लेवल लगती होगी उसको वो रिस्पॉन्ड करता होगा। आप उसके प्ले स्किल्स के ऊपर काम करें, उसके साथ टेबल टॉप एक्टिविटीज़ करें, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिस्पॉन्स करेगा और वो सेंसरी तौर पे चीज़ों को साउंड को सीख कर रहा है। तो आप अपने आप को राइमिंग तरीके से उससे बात किया करें, हर बात को राइमिंग तरीके से कहें। लेट्स डू क्लीन अप, लेट्स डू क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीन अप द फ्लोर, ताकि वो भी आपकी तरफ, जब आप उसको राइम्स की तरह से करेंगी तो वो आपकी तरफ भी फोकस होना शुरू होगा, बिकॉज उसको अच्छा लगेगा, एक इंटोनेशन होगी साउंड के अंदर, तो ही ट्राई टू इन्जॉय इट, वो उसको इन्जॉय करेगा एंड ही रिस्पॉन्ड टू यू मोर। ओके, my son is 9. He has sensory issues. He likes to touch rough things and often touch hair on face of his father. So definitely वो टच का एक्सपोजर लेना चाह रहा है, वो बार बार टच करना पसंद कर रहा है। तो आप उसके लिए यही, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्टाइल एक्सपोजर आप उसका बढ़ा दें, डिफरेंट टच दें। अगर उसको हार्ड सर्फेसिस पसंद हैं तो आप डिफरेंट स्पाइकी चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे आजकल वो मिल रहे हैं, वो जो फ्लोर मैट्स मिलते हैं जिसके ऊपर ग्रास का टेक्सचर बना होता है, या डिफरेंट रफ टेक्सचर्स वाले को आप उसके साथ इंड्यूस कर सकती हैं, या डिफरेंट ब्रश लेके या पेंसिल की टिप लेकर उसके साथ, इस तरह भी नहीं कि वो बिल्कुल शार्प हो, लेकिन थोड़ी सी राउंडेड टिप उसके साथ डिफरेंट टेंट उसके साथ करें, या आप ब्रश लेके डिफरेंट उसको उसके हैंड के ऊपर, उसके पाम्स के ऊपर करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको डिसेंसिटाइज करें और उसको डिफरेंट टेक्सचर्स का एक्सपोजर दें। इससे उसको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। Do parents need to have a sensory room with swing, slide and trampoline at home for vestibular sensory input? Does it help calming behaviors of an autistic child? सबसे पहली बात ये कि इट डिपेंड्स अपॉन एन अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अफोर्ड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए एक वेस्टिबुलर इनपुट वाला रूम बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बट आई वुड से कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ बेसिकली अबाउट क्रिएटिविटी। आप इसको बहुत सारे सेंस में यूज़ कर सकते हैं। स्विंग की जगह आप अगर आप स्विंग को यूज़ कर सकते हैं तो आप हैमॉक बना सकते हैं, एक कपड़े में बच्चे को डाल के उसको रोटेट स्विंग कर सकते हैं। सो देयर इज़ सो मच क्रिएटिविटी ऐड टू इट। आप डिफरेंट घर की चीज़ों को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी क्या स्ट्रेटजी, आप चीज़ों को यूज़ कैसे करें। इट स्टिल डिपेंड्स ऑन यू। तो आई वुड से कि हाँ, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए घर में। आप प्ले डो लेकर आ सकते हैं, सेंसरी लाइट्स लेकर आ सकते हैं। अगर आप वेस्टिबुलर की बात करती हैं तो उसके लिए आप, अगर आपके घर में ट्रैम्पोलिन नहीं है तो आप अगर बच्चे को पार्क टाइम लेके जाएं, प्ले स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको पार्क लेके जा सकती हैं, आप उसके साथ सिंपल जंपिंग एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, उसके साथ राउंड एंड राउंड एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, रफ़ हाउसिंग में उसको चेंज कर सकती हैं, एरोप्लेन मेकिंग और एनीथिंग। आप उसको रफ़ हाउसिंग एक्टिविटी में चेंज कर दें, आप उसको राउंड एंड राउंड एक्टिविटी कर लें। वेस्टिबुलर को आप अडेप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्लाइड या स्विंग से ही इनपुट मिले। इनपुट की फॉर्म वेस्टिबुलर इनपुट होना चाहिए, फॉर्म किसी तरह भी हो जाए। अगर आप क्रिएटिव होना चाहती हैं आप उसके साथ क्रिएटिव भी हो सकते हैं। इफ़ यू कांट अफोर्ड यू कैन ब्रिंग, आप बच्चे को पकड़ के उसके साथ राउंड एंड राउंड एक्टिविटी कर सकती हैं। सो एनीथिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो इनपुट देना, बच्चे की रूटीन में उसको शामिल करना ज़रूरी है। चीज़ें जो है वो डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी पे, आपकी अडेप्टेबिलिटी पे, कि आप कितना उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं घर में, उसको किस तरह, आप किस स्ट्रेटजी से किस चीज़ का इनपुट आप कैसे दे रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर थेरेपिस्ट। अगर आपका थेरेपिस्ट आपको आइडिया दे सकता है कि ऐसे 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 आप इसकी जगह आप ये स्ट्रेटजी करें, या ये चीज़ आपको हेल्पफुल होगी, या आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है। सो आई थिंक इट डजेंट मैटर दैट मच। Arifa Shaheen, my son is 3-year-old and is oversensitive to pain, loud noise. He can't even see any cartoon character in problem and starts screaming and crying. How I can treat this problem? Sometimes he even gets scared of moo of cows, though he loves to sing animal sounds. Okay, if he's auditory sensitive, so still पहले तो ये कि उसको assess करना पड़ेगा, and then if he is sensitive, तो what you can do is कि वो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लो पिच से आहिस्ता आहिस्ता उसकी साउंड इंक्रीज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को अडेप्ट करें। इट्स ऑल अबाउट बेसिकली सेंसिटिविटी में हम यही करते हैं, बच्चे की रूटीन में उसका पार्ट बनाते हैं। सडनली नहीं बनाते, स्लोली बनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बच्चे को हैबिचुएट करें। स्लोली, जैसे बच्चा एक लेवल को अडेप्ट कर जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल इंक्रीज़ करते जाएँ। बच्चे को हैबिचुएट करना ज़रूरी है। Amara Zishan is saying thanks a lot, welcome. I am so happy and I am so happy with all the questions coming up. I am so happy that I could be of any help. Okay, I've got a question of Memuna Ali. He wears his father clothes. I have
read this question and I've asked कि अगर आप इसको repeat कर सकें. I'm just going over the questions. If you guys have any other questions about it, I can answer it. I am here to answer. My son has also sensory issue. He loves to play with soap and water. सोप एंड वाटर आपको चेक करना पड़ेगा. वो स्प्लैश करना पसंद करता है, डीप प्रेशर सीख कर रहा है, या वो मेसी प्ले करना पसंद करता है. अगर तो स्प्लैश कर रहा है, डीप प्रेशर सीख कर रहा है, तो आप उसको हग्स दें, डीप प्रेशर्स दें. और अगर वो मेसी प्ले कर रहा है तो आप उसी तरह मेसी प्ले एक्सपोजर को उसकी लाइफ में इंक्रीज़ करते जाएं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में उसके पार्ट में और से उसकी लाइफ में और इंक्रीज़ करते जाएं. तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो if you guys have any other question, do come up, do ask me. I am here to answer you. I am here. Will burger brushing please? For whom? What are the problems of which brushing is done? Will burger brushing protocol is properly ये पूरा प्रोटोकॉल है. और अगर मैं इसको बताऊं तो आई वुड से कि आप विदाउट थेरेपिस्ट अप्रूवल एक तो इसको यूज़ मत करें, और विद थेरेपिस्ट अप्रूवल इसको यूज़ करें, बिकॉज इसके प्रॉपर प्रोटोकॉल है. देयर आर सम बॉडी पार्ट जैसे पाम्स हैं, स्टमक है, देयर आर सम एरियाज जिस पे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उसको यूज़ करने की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है कि आप उसको ब्रश को कैसे अप से डाउन एंड डाउन से आप उसकी स्ट्रोक के प्रॉपर प्रेशर होता है. सो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर आप उसको टेक्टाइल सेंसिटिविटी में या किसी भी टेक्टाइल इशू में या किसी भी में यूज़ कर रहे हैं प्रोप्रिसेप्शन के लिए, तो प्लीज़ उसको अपने थेरेपिस्ट की गाइड से यूज़ करें, या आप यूट्यूब पे उसकी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें प्रॉपर आपको वो एक्सप्लेन करते हैं विल बर्गर प्रोटोकॉल. बट आइडियली आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप फिर भी थेरेपिस्ट से उसको करें, बिकॉज इन माई क्लिनिक आई ऑलवेज़ मैं कोशिश करती हूँ कि 5 to 6 सेशंस कंटिन्यूसली पेरेंट्स पहले उस प्रोटोकॉल को समझें और फिर उसको अप्लाई करें. सो दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड एज वेल कि आप उसको पहले लर्न करें अपने थेरेपिस्ट से उसके पॉइंट्स, एंड फिर उसको अप्लाई करें अपने बच्चे के ऊपर. माई सन इज़ 2.6 year old, throws tantrums all day long, like would want to go to lawn, and if we shut the door due to hot weather he'll throw a tantrum, or if wants spectacles from grandparents would throw tantrum. How to handle him during this? इसके अंदर तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि आप उनको हैंडल कैसे कर रहे हैं. कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको उसके टेंट्रम्स को अवॉइड करना पड़ेगा. टेंट्रम को अवॉइड करें आप सबसे पहले ये कर सकते हैं, सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है उसको रीडायरेक्ट करें. अगर उसको एक चीज़ पे अड़ गया है तो आप फॉर एग्जांपल उसको किसी और चीज़ पे रीडायरेक्ट कर दें. फॉर एग्जांपल बबल्स की तरफ ले आएँ, उसको बबल ब्लो कर दें, या कोई और ऐसी चीज़ दिखा दें जिससे उसका ध्यान बढ़ जाए. अगर नहीं रीडायरेक्ट हो रहा तो आप उसको इग्नोर करें. ठीक है, यू हैव टू इग्नोर दैट. आप दूसरे कमरे में चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ, बट यू हैव टू इग्नोर दैट टेंट्रम. सो दिस इज़ द ओनली थिंग, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट. मोस्टली पेरेंट्स टेल मी अलॉट कि जो बच्चा है वो टेंट्रम करा था, एंड देन हमने रेजिस्ट किया, और फिर बहुत हो गया, हाफ एन आवर तक हो गया, एंड देन फिर हमने उसको फाइनली दे दिया. आई ऑलवेज से कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस. अगर आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही करना पड़ेगा कि आप जो है उसके टेंट्रम्स को केटर नहीं करें, आप उसको रीडायरेक्ट करें या उसको इग्नोर करें. सो दिस इज़ यू हैव टू डू इट. आई नो इट्स अ हार्ड टाइम, बट यू हैव टू डू इट. अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाएं, या फिर आप सोशल स्टोरी उसको बता सकते हैं, जिसमें सोशल स्टोरी के थ्रू आप उसको अडेप्ट करें, उसको बताएं कि समटाइम्स इट्स नॉट गुड टू थ्रो टेंट्रम एंड पेरेंट्स डोंट फील गुड अबाउट इट, पीपल अराउंड यू फील बैड अबाउट इट. तो इस तरह करके आप बच्चे को बता सकते हैं, या फिर आप बिहेवियर थेरेपिस्ट आर देयर टू हेल्प यू. Okay, then we have Umme Fassi. My son does not want me to brush his teeth. What strategies you can suggest? Thank you so much. As I have suggested you कि आप क्या कि ब्रश करने के लिए वही है कि आप ओरल मोटर जो भी मैंने आपको बताए टास्क, जिसमें आप गम मसाज दे सकते हैं, क्रंची फूड दे रहे हैं, ब्लो बबल्स करवा रहे हैं, बबल ब्लोइंग टास्क करा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गम मसाज और ओरल ब्रश जो है वंस इन अ डे उसके साथ स्टार्ट करें. आहिस्ता आहिस्ता ओरल ब्रश और गम मसाज की इंटेंसिटी जैसे जैसे बच्चा अडेप्ट करता जाता है उसको स्लो डाउन कट ऑफ करते जाएं. सो आई थिंक आई विल जस्ट टेक अनदर क्वेश्चन और सो, एंड देन आई विल ट्राई टू wrap it up.
so that we could just wrap it up. Sometimes we take him to basement to play or give him something to play. In case of spectacular time, we gave him dummy spectacular some other toy. दिस मीन्स कि आपने उसको डमी भी दिया, तो बेसिकली आपने उसको रीइंफोर्स कर दी बात, आपने उसका बिहेवियर मान तो लिया कि आपने उसको स्पेक्टिकुलर दे दिया. सो यू डोंट हैव टू गिव दैम, यू हैव टू रीडायरेक्ट हिम, यू हैव टू इग्नोर हिम, यू हैव टू मेक हिम लर्न कि एवरीथिंग योर टेंट्रम वोंट बी catered. So this is the, I think the time is done. Time has passed in just a blink. It was lovely meeting you all, lovely seeing you all, getting all the questions, and I hope I have catered. Even if you can just give a DM, I will try to reply them as soon as possible. And I just got a question, how can I get consultation from you? I am from Karachi. You can just log on to my page, that is Super Kids. I am giving online consultations over there. You can have from me over there. And once again, Alaina Beg is saying amazing information. Thank you so much. Welcome. It was lovely having you all, having some amazing questions. I loved my all encouragements are for you here. Anything you want, any help, I am there. I can answer your questions. If you want to have a consultation from me, you can come over, contact me there. Anything, if you want me to come for a live session again, I will try to do it. So give me your feedback, and if there are any questions left, I will try to cater them at whenever I get the time. And do let me know if I have catered your answers. And once again, it was lovely meeting you all. Thank you everyone. Allah Hafiz.